بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو کل کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے آپ کو یہ بتائے تھے کہ شرعی اعتبار سے آپ کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے، آپ اپنے بیوی سے جتنی مرتبہ ملنا چاہتے ہو، جتنی مرتبہ ملاقات کرنا چاہتے ہو مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں۔ لیکن اب جو سبق ہے، اب اس کے اندر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کثرت جماع کی وجہ سے، یعنی جو لوگ اپنے صحت کا خیال نہیں رکھتے، یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہم آپ کو میڈیکل سائنس اور طبی اعتبار سے بتائیں گے، اس لیے کہ جو شرعی مسئلہ تھا وہ تو ہم نے کل آپ کو بتا دیے، کل آپ کے سامنے وہ آ چکا ہے کہ شرعی اعتبار سے جو ہے آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ جتنی مرتبہ چاہے صحبت کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو طبی اعتبار سے بتائیں گے کہ وہ آپ کے صحت کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے جو ہے اپنے بیوی سے ملاقات کرنے کے درمیان میں کتنے دنوں کا گیپ دینا چاہیے، یا کتنے مہینوں کا گیپ دینا چاہیے، یا کتنے ہفتوں کا گیپ دینا چاہیے۔ تو چلیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقت والا مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جب طاقت اللہ کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا، اس کو بڑھانا، اور جو چیزیں طاقت کو کم کرنے والی ہے یعنی کمزور کرنے والی ہے ان سے احتیاط رکھنا، یہ سب مطلوب ہوگا۔ اس میں غذا کا بہت کم کر دینا، نیند کا بہت کم کر دینا، ہم بستری یعنی اپنے بیوی سے صحبت کرنے میں حد قوت سے آگے زیادتی کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیماری ہو جائے، یا بد پرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے یا کمزوری اور ضعف لاحق ہو جائے، سب داخل ہو گیا، ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھو ابھی یہ ساری باتیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے وہ تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو آپ کو کمزور کرنے والی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک جو طاقت والا مومن ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ افضل ہے، اور کمزور مومن سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے تو اس کے لیے آپ نے اپنی صحت کا پورا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب صحابہ اکرام کے زمانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کی غذائیں تھی، جو ان کا ڈائٹ تھا، وہ اتنا زیادہ ہیوی تھا، اور وہ ڈائٹ جو ہے ان کا اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ وہ ڈائٹ کے ہیوی اور طاقتور وہ ہونے کی وجہ سے، جیسا ہم نے کل آپ کو وہ حدیثیں سنائیں کہ وہ ایک ایک دن میں جو ہے اپنی کئی بیویوں سے صحبت کیا کرتے تھے، ان سے فراغت حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ ایک دم فزیکلی وہ فٹ ہوا کرتے تھے، اور وہ زمانے میں جو ان کی غذائیں ہوتی تھی، مطلب جو چیزیں وہ لوگ کھاتے تھے آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں وہ لوگ پورے جو بکرے ہوتے ہیں، وہ پورا ایک بکرا جو ہوتا ہے اس کو باربیکیو کیا جاتا تھا، پورے ایک بکرے کو، اور 2-4 لوگ مل کے اس کو ایسے کھاتے تھے جیسے ہمارے یہاں پہ ایک چکن تندوری کو گھر کے 2-4 لوگ مل کر کھاتے، پورا ایک بکرا۔ اور اس کے بعد میں وہ لوگ کھجور کھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کھجور کتنی طاقتور ہے، اگر آپ 2-4 کھجور زیادہ کھا لیں گے تو آپ کو تو طبیعت خراب ہو جائیں گی آپ۔ لیکن اس زمانے کے اندر ان کا، اور آج بھی آپ اگر عرب ملکوں کے اندر دیکھو گے تو کھجور کا استعمال وہ لوگ کثرت سے کرتے ہیں۔ تو کھجور کے اندر 80% جو ہے نا اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، اس کے اندر فولاد ہوتا ہے، اسی لیے اگر کسی کو خون کی کمی ہے اس کو کھجور کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ افضل ہے، کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ کے نزدیک۔ تو اس کے لیے جو آگے اللہ کے نبی نے لکھا ہے جو پرہیز ہے، پرہیز کے بارے میں بھی اس کا بھی ہم نے یعنی پرہیز کے بارے میں بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ شروع میں جب نیا آپ کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے باڈی کے اندر جو ہے پوری طرح سے وہ فٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے،
تو شروع میں جب اس کو زیادہ طاقت ہوتی ہے، یعنی جائز طور سے خواہش پورا کرنے اور بیوی سے بہت زیادہ صحبت کرنے میں بھی نقصان ہے، جبکہ وہ حلال ہے، جائز ہے آپ کے لیے، شروع میں آپ جوان ہیں اور شروع میں آپ کے اندر جوش ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سکاڑ دوپہر سندھیا کاڑ آپ کا جو ہے دن میں سے 3 مرتبہ چل رہا ہے، بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم تک، یعنی جب تک آپ کے باڈی میں جو ہے آپ کا ساتھ دے رہی ہے اس وقت تک آپ کے یعنی آپ کی طبیعت کے اندر نشاط باقی رہتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو صحبت سے نفرت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو گال ہے یہ پورے اندر پچک جاتے ہیں، ایک دم سموسے کے جیسے گال اندر پچک جاتے ہیں، اس کے بعد میں جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، پھر آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد میں لیپ ٹاپ پہ تھوڑی دیر کام کیے اور سر اوپر اٹھائے تو آپ کو چکر آ رہے ہیں، بھوک برابر سے لگتی نہیں ہے، بہت ساری کمزوریاں اور ویکنیس جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، آپ کے بدن کے اندر کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے اپنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے آپ کو مینٹین کرنا ضروری ہے، اپنے یعنی جو آپ اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہو اس کو بھی آپ نے مینٹین کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کو مرض نہ ہو، اعتدال کے ساتھ قوت شہویہ بھی ہو، اس کو مقویات اور دوائیں کھا کر شہوانی قوتوں کو ازراہ ہوس یعنی نفس پرستی کی وجہ سے برانگیختہ کرنا اور بھڑکانا ایسا ہی ہے جیسے سانپ بچھو خاموش پڑے تھے ان کو چھیڑنا شروع کر دیا کہ آؤ مجھے کاٹو۔ عمرہ مالداروں کو اس کا بہت شوق ہوتا ہے، میں نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ مشروع یعنی جائز شہوت کے پورا کرنے میں افراط اور زیادتی کرنے سے بھی باطن کا نقصان ہوتا ہے اور جسمانی قوت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ چلیے اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو سیکشول ڈیزائر ہے اس کو بڑھانے والی جو ہے میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مارکیٹ میں بہت ساری ملتی ہے، شیلا جیت ہے، ڈابر کی اور پتہ نہیں کیا کیا، اسی طرح سے جو ہے بہت سارے اسپرے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو بہت سارے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اچھا ان کے اندر جو ہے نا قدرتی طور پر نیچرلی جو ہے ان کے اندر وہ جو سیکشول جو ان کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ چیز پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہی، لیکن زبردستی اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنے تیار کرنے کے لیے اور اپنے اندر کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بہت سارے لوگ ایسی میڈیسنز استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان آگے چل کر ہارٹ کا مریض بن جاتا ہے، یعنی ہارٹ جو ہے نا ہارٹ، کیونکہ جو لوگ بھی اس طرح کی دوائیں کھاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ آپ کے ہارٹ پہ ہوتا ہے، کیونکہ ہارٹ کے اندر کی جو پمپنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ پوری طاقت سے جو ہے، کیونکہ آپ کے اندر جو جوش پیدا ہوتا ہے وہ بلڈ کے سرکولیشن کے اندر جو ہے زیادہ وہ پیدا ہونے سے، جتنا زیادہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کو جوش آئے گا، اور وہ جوش لانے کے لیے پھر وہ ہارٹ کی بیٹ بڑھیں گی آپ کی، جب ہارٹ بیٹ بڑھیں گی تو پھر آپ کا ہارٹ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوگا، اور ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دل اتنا کمزور ہو جائے گا کہ وہ دھڑکنا شروع کرے گا، آپ کے بدن میں ایسی کپ کپی آنے لگیں گی، آپ اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے اس طریقے سے ہاتھ میں پین پکڑ لیا تو آپ کا ہاتھ اس طریقے سے جو ہے نا اس طرح سے ایسا آپ کا ہاتھ ہلنا شروع کر دے گا، راشا آ جائیں گا آپ کو، زیادہ دیر آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے، کمزوری آئیں گی، آپ کو بھوک نہیں لگیں گی، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ یہ سب جو پیدا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنی سیکشول لائف ہے اس کے اندر جو ہے نا جو میانہ روی ہے، جو بیلنس ہونا چاہیے تھا وہ بیلنس نہیں رکھتے، بلکہ شروع میں جوش ہے تو سکاڑ دوپہر سندھیا کاڑ، جیسا ہمارے یہاں پہ دوا خانے میں گولیاں دیے جاتے ہیں نا، سکاڑ دوپہر سندھیا کاڑ، تو ان کا بھی پروگرام سکاڑ دوپہر سندھیا کاڑ چلتے رہتا ہے، کیونکہ شروع میں جوش ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب ویکنیس شروع ہو گیا، کمزوری شروع ہو گئی تو میڈیسن لینا شروع کیے، اور جب میڈیسن لینا شروع کیے تو بی پی، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بلڈ کا سرکولیشن بڑھ گیا، اور آپ کا جو ہارٹ تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی کے 4-5 سال کے بعد میں ہی ایسے بہت سارے لوگ دیکھنے ملتے ہیں جن کے یہ جو گال ہے وہ پوری طرح سے ایسے سموسے کے جیسے پچک جاتے اور پھر ان کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کی شادی ہو چکی ہے، آپ کی بیوی کہیں بھاگ نہیں رہی ہے آپ کو چھوڑ کر،
वो आपके साथ में ही है। तो अब आप बैलेंस में कैसे रखोगे अपनी सेक्सुअल लाइफ को? आगे हम आपको किताब में से पढ़कर सुनाते हैं। आगे लिखा हुआ है, बीवी से जिमा करने के हुदूद। कसरत जिमा के लिए शरीयत में तो कोई हद नहीं है, शरीयत ने इससे बहस ही नहीं की है। ये तिब्बी मसला है, इससे अतिब्बा बहस करते हैं। लेकिन यह जरूर होता है कि कसरत जिमा के लिए हर आदमी को अपनी कुव्वत का अंदाजा कर लेना जरूरी है। यानी फजूल खर्ची आप किसी भी चीज में करोगे तो वो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह है। जैसे मिसाल के तौर पर पैसा आपके पास में है, अगर आप उसकी फजूल खर्ची करोगे तो भी वो नुकसानदेह है। आपके पास में जो है कोई और चीज है जिसकी आप फजूल खर्ची कर रहे हो तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। ऐसे ही ये भी जो आपके अंदर जो ताकत अल्लाह ने रखी है, इसमें भी अगर आप इसराफ और फजूल खर्ची करोगे तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आगे लिखा हुआ है, कितने दिनों में बीवी से करीब होना चाहिए? बगैर सख्त तकाजे के बीवी के पास नहीं जाना चाहिए। दरमियानी दर्जे की ताकत रखने वाला आदमी हफ्ते में एक मर्तबा अगर बीवी से सोहबत करता है तो उसकी जो सेहत है, उसकी जो हेल्थ है, वो अच्छी तरह से कंट्रोल में रहेंगी। ना उसके गाल जो है वो समोसे के जैसे पिचक जाएंगे, ना उसकी आंखों के सामने ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाएंगे, ना उसको जो है खड़े होते ही चक्कर आना शुरू होंगे। हफ्ते में एक मर्तबा, यानी एक महीने में 4 मर्तबा अगर वो अपने बीवी से सोहबत करे तो ये एक बैलेंस वाली तरतीब है। इससे ज्यादा में मर्द पर ज्यादा ताब होगा, इसमें तौलीद पैदाइश की कुव्वत ना रहेगी और फिर औरत का हक अदा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे भी 2 पॉइंट लिखे। अगर एक इंसान हफ्ते में एक मर्तबा अपने बीवी से मुलाकात कर रहा है तो उसके अंदर निशात रहेगा। निशात किसे कहते हैं? निशात कहते हैं कि आप जो है ना मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर होना चाहिए, यानी आपके अंदर भी जो है ना ऐसी ख्वाहिश होना चाहिए, फिर आप जो है बीवी को अच्छी तरह से सेटिस्फाइड कर सको हफ्ते में एक मर्तबा में। अब क्या होगा अगर आप जो है हफ्ते से ज्यादा करोगे तो फिर क्या होगा? उसके बाद में 2 नुकसान आपको होंगे। एक नुकसान तो आपका ये होगा कि अब आपको रोजाना की आदत पड़ गई, अब उसको पूरा करने के लिए गोलियां खा रहे हैं, उसके लिए जो है वो शिलाजीत खा रहे हैं और उसके लिए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसके लिए स्प्रे यूज कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग टाइप की चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो प्रॉब्लम क्या होगा? 2 प्रॉब्लम्स होंगे। एक प्रॉब्लम तो ये होगा कि जो आपका मादा मनविया है वो क्या होगा? वो एकदम पतला हो जाएगा। पतला यानी वो जो है ना एकदम पानी के जैसा हो जाएगा। और जब वो पानी के जैसा होगा तो उसके बाद जैसे ही आप जो है बीवी से सोहबत करना शुरू करोगे तो अभी आपने शुरुआत भी नहीं किए थे, आप फौरन डिस्चार्ज हो जाओगे। अब डिस्चार्ज होने के बाद में क्योंकि आपको अपने बीवी का हक अदा करना है और ये शरई एतबार से उसका हक है कि आप उसको भी पूरी तरह से 100% सेटिस्फाइड करो। अब अगर मान लो आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हो तो इस तरह से आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो और आप एक खुदगर्ज इंसान हो और आप एक सेल्फिश इंसान हो कि आपने अपनी जरूरत को तो पूरा कर दी है, उसकी जरूरत आपकी बाकी रह गई हुई है। तो एक नुकसान ये होगा। दूसरा, और फिर क्या होगा? जब वो पतला हो जाएगा मादे मनवी आपका, तो उसके बाद में आप औलाद पैदा करने के लायक नहीं रहोगे, आपको औलाद नहीं पैदा होंगी, आप औलाद नहीं पैदा कर सकते। फिर प्रॉब्लम आएगा, आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। फिर प्रॉब्लम क्या आएगा? डॉक्टर बोलेंगे यार आपके जो जरासीम है वो मर रही है, वो जो है वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, यानी जो फीमेल के एग्स है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। जो वहां पे जो है जो बेबी प्लांट होना चाहिए था वो प्लांट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके एग्स जो है वो तो स्ट्रांग है, लेकिन आपके जो जरासीम है वो पूरी तरह से एकदम पतले, आपने पानी के जैसा कर दिए तो आप तो एकदम कमजोर हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम होगा आपको, आपको औलाद नहीं होंगी फिर। तो इसलिए 2 नुकसान, एक तो ये होगा और दूसरा नुकसान ये होगा कि भाई आपने जो है अपनी वाइफ को, वो बेचारी को तो आप रोजाना जो है सोहबत के लिए आमादा कर रहे थे, उसको तो आप रोजाना तैयार कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गए? आप हो गए कमजोर, आपका मुंह हो गया समोसे के जैसा, आप हो गए, आपको जो है यानी आपके अब आपके दिल में धड़कन, बेचैनी, ये सारी चीजें आपको जो है शुरू हो गई। अब उसके बाद में वो जो है उसको तो आपने आदत लगा दी है, अब वो जो है वो परेशान है। वो ये चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड से मुलाकात करूं और हमारे दोनों के बीच में जो है एक रोमांटिक माहौल बने। अब वो नहीं होगा तो फिर वो क्या करेंगी? वो फिर जो है वो चिड़चिड़ापन होगा,
फिर वो आपको जो है जवाब देंगी, फिर लड़ाई होंगी, फिर झगड़े होंगे, और उसके बाद में जो आपका मसला है वो डिवोर्स तक पहुंचेगा, तलाक तक पहुंचेगा। और ये मसला हमारे पास आया हुआ है। अब मैं आपको और एक बता देता हूँ। एक तलाक का मसला हमारे पास सिर्फ इसलिए आया क्योंकि वो लड़की ने यही शिकायत की कि उसका हस्बैंड जो है वो पूरी तरह से उसका हक अदा नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए उसको डिवोर्स चाहिए, इसके लिए उसको तलाक चाहिए। तो मुझे आप बताओ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद हैं। कि अगर आप शुरू से ही वो चीज को बैलेंस रखते थे, जैसे मिसाल के तौर पे ये पानी है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये है पानी का एक ये है, समझो पानी का एक थर्मस है, ये पानी, इसके अंदर जो है 5 लीटर पानी है, और ये है हमारा पानी का ग्लास। अब मैं अगर इस पानी में से आधा ग्लास लेता हूं, देखिए मैंने जो है इसमें से आधा ग्लास, पाव ग्लास पानी लिया, और मैं रोजाना सिर्फ आधा ग्लास इसमें से पानी पी रहा हूं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये इतना पानी जो है मुझे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, हो सकता है 1 महीने भर के लिए भी काफी हो जाए। लेकिन अगर वहीं पर ये जो पानी है मैं रोजाना 4-4, 5-5 गिलास पीना शुरू कर दूं, तो मुझे 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। और अगर मुझे ये कहा जाए कि भाई ये जो है अब तुमको 1 महीने तक पानी नहीं मिलेगा, तो तुमको थोड़ा थोड़ा करके पीना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पीऊंगा तो जिंदा रहूंगा, और नहीं तो फिर 1 हफ्ते के बाद में रवानगी के आदाब, क्योंकि पानी ही नहीं है। सेम टू सेम ये मिसाल है, ये मैंने आपको समझाया हूँ मोटी मिसाल देकर। ऐसे ही तो इसके लिए जो है ना, आपके लाइफ में जो है ना, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है अपनी वाइफ के साथ में, उसमें बैलेंस होना जरूरी है। नहीं बैलेंस होगा, और आप ये सब हदीसें और वो जो मैंने कल आपको वाकया सुनाया कि सहाबा ऐसे मुलाकात करते थे और अल्लाह के नबी की इतनी बीवियां थी, आप भी जोश में आ जाओगे, क्योंकि आप तो जो है कुरकुरे खाने वाले हैं, और वो लोग जो है बारबेक्यू गोश्त खाने वाले थे, और वो लोग जो है खजूर खाते थे, तो उनमें वैसी ताकत थी, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। आपके घर में तो आधा किलो गोश्त आ रहा है, तो उसको घर के 10 मेंबर खा रहे हैं, हर एक के इसमें हिस्से में 1-1 बोटी आ रही। वैसा आधा आधा किलो गोश्त तो वो लोग 1-1 निवाले में खा जाते थे वो जमाने में उनके पास में। तो इसलिए उनके अंदर वैसी ताकत थी, वैसी कुव्वत थी। वो लोग जो है रोजाना एक्सरसाइज करते थे, वो लोग वैसे जफाकशी के काम करते थे, खेतों में काम करते थे, घुड़सवारी करते थे। आपने तो कभी जिंदगी में घोड़े पे बैठे भी नहीं होंगे। आप तो कभी घोड़े के पास भी गए तो खाली सेल्फी लेके उसको व्हाट्सएप पे या स्टेटस पे रखते होंगे, देखिए आज मैं घोड़े पे बैठा बोल के, खाली फोटो लेने के लिए, फोटो लेने के लिए। तो ऐसा हमारे और उनके बीच में ये डिफरेंस है। आप उनकी बराबरी करने के लिए जाओगे तो नहीं कर सकते आप। तो ये 2 प्रॉब्लम्स आपको पैदा होंगे, एक तो औलाद पैदा करने के लायक नहीं रहेंगे, और कुछ दिनों के बाद बीवी का हक अदा करने के लायक नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे, वो औरत बीच मजलिस में बोल देंगी कि ये नामर्द है, मेरा हक नहीं अदा कर रहा, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। उसके बाद आपके पास में कोई रीजन नहीं रहेगा। चलिए, जो लोग कुव्वत बढ़ाने वाली दवाओं से जो अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, वो अपनी सेहत को बर्बाद करती है। इसलिए कि यही कायदा होना चाहिए, बगैर सख्त तकाजे के बीवी के पास न जाए, और जो शहवत उभारने वाली दवाएं हैं उनके इस्तेमाल करने से ताकत ज्यादा नहीं होती है। हाँ, इस्तिस्का हो जाता है। इस्तिस्का यानी फिर कितना भी आप पानी पी लो तो वो पानी की प्यास बुझती नहीं है। यही हाल उन लोगों का होता है जो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने बीवी से मुलाकात करते हैं, फिर उनकी भी कभी प्यास नहीं बुझती। और ये सेहत की दलील नहीं है, बल्कि सख्त बीमारी की दलील है, और जिसका अंजाम जो है एकदम खतरनाक होता है। जिसका अंजाम क्या होता है भाई? खतरनाक होता है। यानी बहुत अच्छी मिसाल उन्होंने दी है, मिसाल देके ये समझाए कि एक आदमी जो है दवाएं खा खा के, मैंने भी देखा हूं ऐसे जो दवाएं खाने वाले लोग होते हैं ना, इतने कमजोर हो जाते हैं वो बाद में जो है उनका हार्ट काम करना छोड़ देता है, फिर कुछ किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर अदर जो ऑर्गन्स है उनके, वो जो मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर जिसे कहते हैं, वो बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं। मैं जरा पानी पी लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर जिसे कहते हैं, ये बीमारी के वो शिकार हो जाते हैं। फिर उनके कई जो है बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, और फिर थोड़े दिनों के बाद में उनके इंतकाल की खबर मिलती है, और हम बोलते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहाँ गए? बोले जहां से आए थे वहीं चले गए। चलो ठीक है।
आगे लिखा है हर चीज को उसकी जगह पे रखना, यही बड़ा कमाल है। मेरे नजदीक सेहत की हिफाजत निहायत जरूरी है। सेहत जो आपको अल्लाह ने दी है ना, हेल्थ, आप लोगों ने भी सुने होंगे वो शेर बार बार जो है मिसाल के तौर पे बयान किया जाता है कि जान है तो जहान है। तो ये जो सेहत है, मेरे नजदीक सेहत की हिफाजत निहायत जरूरी है। अपने ऊपर सख्ती और ताब ना डाले, मतलब अपने खुद के ऊपर प्रेशर ना डाले। इससे बाज लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, यहां तक कि बाज लोग मजनू यानी पागल हो गए, बाज लोग मर गए। सेहत हयात की बड़ी हिफाजत रखनी चाहिए, ये वो चीज है फिर कहाँ मुयस्सर है। सेहत के सामने लज्जत क्या चीज है, थोड़ी देर के लिए मजा और फिर जिंदगी भर की सजा, यानी आपके अंदर का पूरा निशात खत्म हो गया, तो उसकी बहुत कदर करना चाहिए। मशरूत जायज शहवत के इफरात यानी पूरा करने में मुबालगा और ज्यादती में भी नुकसान है, इस वास्ते के निशात जाता रहता है, बुजुर्गों ने इससे मना किया हुआ है। अब देखिए जो बीमारियां पैदा होती है कसरत जीमा से, मैं आपको यहाँ बीमारियां लिखी हुई है। जीमा तिब्बी फेल है, बकाए नस्ल के लिए जरूरी है, मगर इसकी कसरत यानी ज्यादती से इतनी बीमारियां पैदा होती है, इतने अमराज पैदा होते हैं। सबसे पहले ज़ुअफ़े बसर, निगाह की कमजोरी। दूसरे शकल सिमाअत, सुने नहीं आता यानी कम सुनना और बहरापन पैदा हो जाता है। तीसरे राशा और चक्कर। चक्कर तो आपको मालूम है, जैसा मैंने अभी बताया, एकदम खड़े रह गए, आंखों के सामने अंधेरी आई, चक्कर आ रही। और राशा बोलते जैसे ये पेन है, इसको पकड़ने के बाद ऐसा हाथ ऐसा ऐसा यूं जो करता ना, उसको बोलते हैं राशा होना। दर्द कमर, कंबर में दर्द हो रहा, बोले मेरे कंबर में, तो ये जो लोगों के कंबर में दर्द होता है उसका भी एक रीजन है। दर्द गुर्दा, दर्द गुर्दा मतलब किडनी के अंदर जो है पेन होता है। पेशाब की कसरत होती है, यानी बार बार यूरिन पास करने के लिए जा रहे हैं। ज़ुअफ़े मैदा, मैदा यानी मैदा भी कमजोर हो जाता है, कुछ खाए तो हजम नहीं हो रहा, हजम हो गया तो फिर वो लूज मोशंस जो है बराबर नहीं हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बीमारी हो रही है। ज़ुअफ़े क़ल्ब यानी मैदा और दिल की कमजोरी, खुसूसन जिसको ज़ुअफ़े बसर या ज़ुअफ़े मैदा या सीने का कोई मर्ज हो, उसको जिमा की कसरत निहायत ही मुज़िर है, उसने इससे परहेज करना चाहिए। देखो ये सारी बीमारियां जो है, अभी मैंने आपको हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में पढ़कर बताया हूँ, ये सारी बीमारियां उससे पैदा होती है। तो आखिरी में जो फाइनल वर्डिक्ट हमारा है वो ये कि आप अच्छा खाओ पियो, अच्छा खाओ पियो अपनी सेहत के लिए, एकदम बेहतरीन खाओ। डोंट टेक एनी टेंशन, आप अपने आप को टेंशन फ्री रखो, खाओ पियो अच्छा, रोजाना एक्सरसाइज करो, वर्जिश करो, और बीवी से मुलाकात करो हफ्ते में सिर्फ एक मर्तबा, बस एक मर्तबा। तो जब आप हफ्ते में एक मर्तबा मुलाकात करोगे तो आपके अंदर भी एक जोश होगा, एक जज्बा होगा, आप भी फिर पूरी तरह से उसको इंजॉय कर सकोगे। और अगर रोजाना बकरे के जैसा, जैसा बकरा होता है ना, बकरा बोकुड़, उसके जैसा अगर आप सोचेंगे कि मैं रोजाना ऐसे फरागत हासिल करूं, तो फिर आप कुछ दिनों के बाद आंखें कमजोर, फिर कुछ दिनों के बाद कान कमजोर, फिर कुछ दिनों के बाद दिल, गुर्दा, जिगर, ये सारे ऑर्गन्स आपके कमजोर हो जाएंगे। तो इसके लिए बैलेंस, क्योंकि आपको जो है ना, बुढ़ापे तक अगर आप सेहतमंद रहोगे और आप जो है थकोगे नहीं किसी चीज को, तो ये अल्लाह का करम होगा। अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अभी जैसे आप देखते होंगे मैं रोजाना यूट्यूब पे 5 से 6 वीडियो डालता हूँ, और 2 से 3 बैच में जो है आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, चिल्लाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, मुझे थकावट नहीं होती कभी। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन यही है कि मैं अपना जो डाइट है, खाना पीना है, और ये जो सारा बैलेंस है लाइफ का, उसको पूरी तरह से बैलेंस में लेकर चलता हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें बैलेंस में रहती है। तो ऐसा ही आपको भी इसके ऊपर अमल करना है, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। अब किसी का कोई सवाल है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलो सवाल भेजो, आप किसी का कोई सवाल है? इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन सो नो प्रॉब्लम। चलिए चलिए चलिए, ताल ताल ताल।
चलिए अब किसी का कोई सवाल है, सवाल भेजो आप लोग, सवाल भेजो। कोई डाउट अगर आपके माइंड में है, कोई चीज समझ में नहीं आई है आपको, वो भेजो। अगर कोई आपका फीडबैक है, आपको सबक अच्छा लगा है तो वो भी भेजो, ताकि हमको भी समझ में आए कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया। और कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भेजो। मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद से, मौलाना ने लिखा है माशाअल्लाह। भाई जज़ाकल्लाह मौलाना, आपकी मोहब्बत है। आप जैसे बुजुर्ग उलामा भी हमारे सबक में मौजूद है, जिनको माशाअल्लाह सबक पसंद आया बोले तो हमको जरा खुशी होती है, आपके जैसे आलिम दीन ने जो है हमको फीडबैक दिए, तो जज़ाकल्लाह। चलिए और किसी का कोई सवाल है? चलिए एक सवाल और आया है, ये भी सवाल नहीं है, फीडबैक है। औरंगाबाद से इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह सबक था। भाई जज़ाकल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है ये सब चीजें भी हम आपको बताएं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। सबक के अंदर ये सारी चीजें हमारे निसाब में है, आगे और आगे मसले मसाइल आने वाले हैं। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम लोग जो है ना, सबक का नागा बिल्कुल मत करो, पाबंदी करो आप सबक की। अब आप लोगों का देखो सबक जो है ना आपका 30 तारीख तक होगा। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कब तक है, आखिरी तक है, महीने की आखिरी तारीख तक सबक है आपका, डेली सबक रहेगा, सबक नागा मत करो। एडवांस कोर्स जो है ना वो फाउंडेशन कोर्स से डबल अहमियत वाला है, इसमें असली चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो मेहरबानी करो, इसको वो मत करो, मिस मत करो। सर आपकी बात सही है, जितनी हेवी डाइट हो उतना बॉडी हेल्दी होंगी जी। और थोड़ा एक्सरसाइज भी करने का रोजाना। ऐसे ही हमारे घाटकोपर से तनवीर भाई ने भी लिखा है, वेरी यूजफुल। भाई जजाकल्ला तनवीर भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। चलिए भाई, अब मुझे किसी का कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों से इजाजत ली जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी को कुछ फीडबैक देना है तो बाद में भी दे सकते हैं।